This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Hello, listener. Welcome back to the last unit of this block 2 of MST E002. And this is the unit 6, queuing theory. And there is a one question in the assignment of this topic. And generally, question of 3 or 5 marks generally appears in the examination. So you can prepare it. It is not so tough. It is very easy. But you have to learn about the basic concept of the queuing theory, and there are some formulas which are available in the formula booklet. So you have just clarify the two concept, the mean of the Poisson distribution and exponential distribution. If you can easily judge about both, then this unit is so easy. Okay, so queuing theory, you always notice there are queue in different departments as window of railway station, bank payment, bills payments, and after the invention of the online payment, the queuing, there is a very reduction in the queues of the bills, electric bills, LPG bills, so types of bills. And the main purpose of the studying the queuing theory is that through the theory of queuing theory, we can learn about the what will be the waiting time of a person or of an item in a queue. What will the total length of the queue? How can we how many server we have to admit so that there is no queue, and such what is the probability that there is a queue, so we can get the answer of such query through the queuing theory. Okay, so now we come on the basic concept of the queuing theory. For understanding queuing theory, we have to familiar with the probability theory. And probability theory, especially in the queuing theory, we use two distributions. One for the discrete, and second one is the continuous. And discrete is Poisson distribution, and continuous for the exponential distribution. There is a relationship between the Poisson distribution and exponential distribution, and we use the relationship to solving the queuing theory, queuing problems. So what is the relationship between them? Yes. If the arrivals in a system follow the Poisson distribution, then inter-arrival times follow the exponential distribution. So we use this concept and throughout the queuing theory, and we are not going to the basic depth of the queuing theory. What is the random process and so on, because we are not derive the formulas of the queuing theory. So we just this is a Poisson process. The process are independent increments. Further change in independent of past. Further change in NT are independent past changes. That is the number of customers which arise in disjoint time intervals are statistically independent. It means that the customer are arriving in a system does not depend on the past changes. कि past में वो किस तरह से वहाँ behave रहा होगा उस पे वो depend नहीं करेगा.
the probability of more than one occurrence of an event between t and delta t, the probability, that is the probability of two or more arrivals of the customer during the small interval of time is negligible. It means that एक अगर बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल है, वहां पे दो कस्टमर आएंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो जीरो होगी, यानी बहुत छोटे इंटरवल में केवल एक ही कस्टमर आ सकता है। कि ये पाइथन प्रोसेस के कुछ, पाइथन प्रोसेस होता क्या है, तो आप खाली बस ये सोच लीजिए पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्रोसेस मैं नहीं लेके जा रहा हूँ आपको, बहुत डेप्थ में है, थोड़ा सा दिक्कत समझने में आती है उसको, तो मैं वहां तक नहीं जा रहा हूँ। तो या टू फॉर्मुलेट अ क्यूइंग मॉडल, या आप हाईलाइट करते जाइएगा जो जो बता रहा हूँ। टू फॉर्मुलेट ए क्यूइंग मॉडल वी हैव टू स्पेसिफाई द assume from of the probability distribution of both inter arrival times and service time. You have learned that inter arrival times follow the, सॉरी यहाँ पे गलत हो रखा है, inter arrival times follow the exponential distribution. ओके, यहाँ पे आप एक्सपोनेंशियल कर लीजिएगा, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल होगा। जब भी टाइम की बात होगी तो टाइम कैसा वेरिएबल है हमारा, कोई बताएगा, डिस्क्रीट के कॉन्टिन्यूअस टाइम, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो हमारा जब भी हमारा टाइम की बात होगी तो वहां पे हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, वो हम लेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। और जहाँ पे नंबर की बात होगी, नंबर ऑफ कस्टमर, तो वहां पे हम, क्योंकि नंबर नंबर इज अ डिस्क्रीट एंड, तो वहां पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे आप, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो देखिए दो यहाँ पे कंसेप्ट यूज करेंगे, एक अराइवल्स और एक सर्विस। जब भी हम क्यूइंग की बात करते हैं तो वहाँ पे कस्टमर्स आते हैं और फिर उनकी सर्विस होती है। मान लीजिए एक क्यू लगी हुई है रेलवे स्टेशन पे, टिकट की क्यू लगी हुई है, तो अराइवल तो कस्टमर आ रहे हैं और जो उनको सर्विस दे रहे हैं, तो सर्विस क्यू डिपेंड करेगी पैटर्न ऑफ द अराइवल और सर्विस, किस तरह से सर्विस हो रही है। अगर सर्विस फास्ट है और अराइवल कम है तो वहाँ पे कोई भी क्यू नहीं होगी। अगर वहाँ पे सर्विस की स्पीड कम है, सर्विस कर रहे हैं 1 घंटे में 6 पर्सन की कर रहे हैं, और अराइवल वहाँ पे 12 का हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे क्यू लगेगी। तो यहाँ पे हम दो ही चीज इसमें हम यहाँ पे यूज करेंगे, एक तो सर्विस और दूसरा अराइवल्स। ओके, चलिए आगे लेते हैं। यस, तो सपोज रैंडम वेरिएबल टी रिप्रेजेंट द इंटर अराइवल सर्विस टाइम। देखिए टाइम की बात हो रही है, तो इंटर अराइवल टाइम हो या सर्विस टाइम हो, इज सेड टू हैव एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटर अराइवल की बात, जब भी टाइम की बात होगी तो वहां पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे हम, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे विद पैरामीटर लैम्डा, ठीक है। और इसका जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो हमने पढ़ा है थीटा ई रेज़ टू पावर माइनस थीटा टी, या लैम्डा ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ पे हमने पैरामीटर लिया है, यहाँ पे लिया है अल्फा, पर जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम लेंगे म्यू, म्यू या लैम्डा, ठीक है। दो पैरामीटर यूज करेंगे, म्यू और लैम्डा। तो एक और इंटरेस्टिंग बात है एक्सपोनेंशियल में, कि अगर उसका जो हमारा पैरामीटर है, पैरामीटर उस इसका जो मीन है, अगर पैरामीटर अल्फा है तो मीन इसका होता है, कोई बताएगा क्या होता है मीन एक्सपोनेंशियल का, किसी को याद है, वो होता है 1/L, ठीक है। और पाइथन का मीन कितना होता है, लैम्डा, लैम्डा। तो पाइथन का मीन लैम्डा, ठीक है। तो ये हमें यूज करेंगे, इन दोनों रिलेशनशिप को हम बहुत यूज करने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल का मीन होता है 1/लैम अल्फा, अल्फा यानी जो भी हम मान रहे हैं उसको पैरामीटर। और अगर पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, वहां पे एवरेज अराइवल रेट, जनरली जो लैम्डा है उसको बोलते हैं अराइवल रेट, ठीक है। तो अराइवल रेट जो उसका मीन होगा वो अराइवल रेट के बराबर होता है, ठीक है। जबकि अगर हमारा अराइवल रेट लैम्डा है तो उसका जो मीन होगा एक्सपोनेंशियल का वो होगा 1/लैम्डा, ठीक है। अगर ये दो बेसिक कंसेप्ट आपने समझ लिए तो क्यूइंग थ्योरी में कुछ नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले यूज होने या फॉर्मूले आपने एग्जाम में मिलने वाले, तो फिर क्यूइंग थ्योरी में कुछ नहीं होता। 2 नंबर के तो जनरली इसका क्वेश्चन एक तो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है 2 मार्क्स, और अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो फिर अंदर नहीं मिलेगा, अगर बाहर नहीं मिलता है तो फिर इसका क्वेश्चन जनरली 3 या 4 मार्क्स का अंदर हो जाता है, यानी डिस्क्रिप्शन। तो ठीक है, चलिए अब आगे लेते हैं। तो एक तो बेसिक कंसेप्ट आपने ये याद रखना है जो यहाँ पे लिखा है, सॉरी,
और जो मैंने बताया कि मीन क्या है एक्सपोनेंशियल का, वो 1/λ होगा, 1/λ या 1/μ या 1/α, जो भी पैरामीटर हम यूज करें। चलिए और देखते हैं अब क्या होगा, ये सब छोड़ते जाइएगा, कुछ नहीं करना। डेथ ऑफ बर्थ, जब भी कोई, इसकी भी जरूरत नहीं, छोड़ो। एजम्पशन ऑफ, ये भी छोड़ो। फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द क्यूइंग सिस्टम, यस। चलिए यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि यहाँ से आपने पढ़ना है। यस, क्यूइंग थ्योरी इज कंसर्न्ड विद द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ क्यूज और वेटिंग लाइंस in the banks, post office, hospital, etc. The formation of waiting lines usually occur whenever the current demand of a service exceed the current capacity to provide that service. It means क्या है कि arrivals अगर ज्यादा है उसकी सर्विस से, तो वहां पे हमारी क्या होगी, क्यू फॉर्म होगी। In many cases, the customer arrivals and his or her service times are not known in advance or cannot be predicted accurately. Otherwise, the operation of service facility could be scheduled in a manner that would eliminate the waiting completely. Both arrivals and departure phenomena are random. देखिए जो कस्टमर आपका आ रहा है, अराइवल हो रहा है, तो उसका जो टाइम है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो बोथ अराइवल और डिपार्चर, किस टाइम वो एक शॉप छोड़ के जाएगा, वो भी हम लोग एस्टिमेट तो कर लेते हैं, पर एक्चुअल में नहीं पता होता। तो दे आर बोथ आर द रैंडम। दिस नेसेसिटी मैथमेटिकल मॉडलिंग और क्यूइंग सिस्टम मॉडल टू अलीव वेटिंग, ये सब कुछ नहीं है। चलिए तो ये भी सब छोड़ देते हैं। यस, यहाँ से लेते हैं। एक क्यूइंग सिस्टम इज डिस्क्राइब फॉलो करते हैं। ये 2 मार्क्स का जो ये इस पूरे पेज पे लिखा है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है इजीली, तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। A queuing system is described by the following elements: input और arrival process of customer, कि जो कस्टमर आ रहे हैं उनका बिहेव क्या है, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि वो किस पैटर्न में आ रहे हैं। देखिए कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेन कंसेप्ट है वो टू नो द पैटर्न ऑफ द रैंडम वेरिएबल, कि रैंडम वेरिएबल किस पैटर्न में आ रहा है, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी होगी आने की या नहीं आने की। तो यहाँ पे जो अराइवल है या सर्विस टाइम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, आना किस डिस्ट्रीब्यूशन में है, जाना किस डिस्ट्रीब्यूशन में है, और क्यूइंग डिसिप्लिन क्या है। क्यूइंग डिसिप्लिन भी अभी हम आगे डिस्क्राइब करेंगे कि क्यूइंग डिसिप्लिन क्या है, किस तरह से क्यू लग रही है। चलिए पहले इनपुट और अराइवल प्रोसेस ऑफ कस्टमर। इन द this is the element concerned with the pattern in which the customer arrive and join the system. The input process is characterized by size, arrival time distribution, and attitude of the customer. The customer का attitude क्या है? We describe these in brief. Size क्या है? Arrival distribution क्या है उसका? किस distribution के through वो arrive कर रहा है? तो size क्या है? It may be finite or infinite according to the arrival rate. Is affected or not affected by the number of customer in the service. Size क्या होगा? कि वो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा अराइवल रेट पे, कि अराइवल रेट हमारा किस रेट से है, ठीक है। और ये इज अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। कभी कभी होता है कि हम लोग जैसे जनरली देखते हैं कि काफी लंबी क्यू लगी हुई है, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं नहीं यार आज नहीं करते हैं, कल कर लेंगे, आज तो बहुत लंबा क्यू है। तो वो डिपेंड करता है कि कस्टमर नंबर ऑफ कस्टमर द सर्विस। ओके, अराइवल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हम मानेंगे जनरली, जो अराइवल जो हमारे कस्टमर या जो भी हमारा पर्सन है या आइटम है जो हमारे सिस्टम से जुड़ने वाला है, वो किस में आ रहे हैं, वो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे हैं। तो उनका इंटरवल टाइम क्या होगा, उनका इंटर अराइवल डिस्ट्रीब्यूशन। इंटर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब है कि एक कस्टमर मेरा यहाँ इस टाइम पे आया और दूसरा कस्टमर मेरा इस टाइम पे आया, तो जो टाइम हुआ इट इज कॉल्ड इंटर अराइवल टाइम, कि 2 अराइवल्स के बीच का टाइम। तो ये टाइम जो है टी, ये फॉलो करेगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर जो ये अराइवल्स हैं ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में आ रहे होंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि अराइवल क्या मानेंगे, आप पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो इनका बीच का जो टाइम है, 2 कस्टमर के बीच का जो टाइम है वो किसे फॉलो करेगा, वो एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा, ठीक है। कस्टमर बिहेवियर वैसे तो इसका खास यूज नहीं है कस्टमर बिहेवियर का, हमारा जो हम जितनी भी प्रॉब्लम हम करेंगे, पर यहाँ पे क्या है कि कस्टमर देखिए जब हम लोग जाते हैं क्या कहते हैं किसी सिस्टम में, किसी क्यूइंग सिस्टम में जाते हैं, तो हमारा बिहेव आपने देखा होगा कि अलग अलग बिहेव होते हैं कस्टमर के। पहला है द कस्टमर मे स्टे इन द सिस्टम अंटिल सर्व। एक बार कस्टमर क्यू में लग गया, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यू हो, तो
वो क्यू में लगा रहता है जब तक कि उसकी सर्विस ना हो जाए, तो इट्स कॉल्ड द पेटेंट कस्टमर। ठीक है, पेटेंट है, कहीं नहीं जाएगा। दूसरा है द कस्टमर में वेट फॉर ए सर्टेन टाइम एंड लीव द सिस्टम इफ द सर्विस इज नॉट कंसर्न बाय दैट टाइम। क्या करता है कि लग गया, देखा नहीं यार चल ही नहीं रही है लाइन, तो फिर वो छोड़ के चला जाता है, तो ये बोलते हैं इम्पेशेंट कस्टमर। थर्ड है when a customer arrives at a queuing system and perceives that the number of customer already in the queue is too large, तो सी और ही डज नॉट ज्वाइन द क्यू। तो जो अगर बहुत लंबी लाइन होती है जनरली हमारा बिहेव यही रहता है कि हम उस क्यू को ज्वाइन नहीं करते, तो बाकी कस्टमर बिहेवियर होगा। और व्हेन ए कस्टमर मूव्स फ्रॉम वन लाइन टू अनदर, मान लीजिए 2 लाइंस लगी हुई है, तो आपने देखा होगा कि हम लोग भी ऐसा करते हैं, मैं भी खुद करता हूँ कि लगता है यार हमारी लाइन अच्छे से नहीं चल पा रही है, हमारे यहाँ पे सर्विस रेट थोड़ा कम है, जबकि जो दूसरे बराबर वाली लाइन है उसका सर्विस रेट अच्छा है, तो हम क्या करते हैं उस लाइन को छोड़कर दूसरी लाइन में एंटर कर देते हैं, तो इस कॉल्ड द क्यू जॉकिंग। उस बिहेवियर क्या होता है क्यू जॉकिंग। ठीक है, अगर ऐसे कस्टमर हमारे मूव कर रहे हैं इस लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी लाइन से। Generally, it is assumed that the customer arrive in the system one at a time, but sometimes customer may arrive in group and such arrival is called the bulk arrival. वैसे तो मानते हैं कि कस्टमर एक के बाद एक आ रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि एक साथ बहुत कस्टमर आ जाते हैं। जैसे काफी सारी वीडियो दिखाते हैं ऑनलाइन आजकल, सॉरी टीवी में दिखाते हैं कि आफ्टर लॉकडाउन कुछ सिटीज में क्या हुआ कि मॉल के बाहर बहुत भीड़ थी, एकदम से पूरे अंदर घुस गए, तो वहाँ पे लाइन नहीं लग रही थी, बल्क में अराइवल हुआ, तो वो वाला केस भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ठीक है, अब आता है सर्विस मैकेनिज्म कि भाई जो सर्विस हो रही है वो किस तरह से हो रही है। सर्विस का मतलब कि वहाँ पे कितने चैनल लगे हुए हैं जो हमारी क्यू को हैंडल कर रहे हैं, हम लोगों को हैंडल कर रहे हैं। तो पहले तो कह रहे हैं कि सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए टाइम आ गया, तो टाइम आ गया तो किसे फॉलो करेगा, एक्सपोनेंशियल को। तो सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आर जनरली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ए सर्विस फैसिलिटी कैन बी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कौन कौन से होते हैं, एक तो सिंगल चैनल फैसिलिटी होता है कि भाई एक लाइन लगी हुई है और एक ही सर्विस करने वाला है, ये सबसे सिंपलेस्ट केस है। वन क्यू सेवरल स्टेशन फैसिलिटीज, ये क्यू तो एक है पर वहां पे क्या है 2 या 3 हमारे जो है फैसिलिटर बैठे हुए हैं जो हम लोगों को डील कर रहे हैं। बुकिंग ए सर्विस स्टेशन दैट हैज सर्व्ड सर्विस मैकेनिज्म। थर्ड है सेवरल क्यूज ऑन वन सर्विस स्टेशन, की लाइन तो 3-4 लगी हुई है पर सर्विस स्टेशन क्या है, वन। जैसे आपने देखा होगा, जैसे होता भी है ऐसा कि जब बहुत लंबी लाइन होती है तो कुछ लोग साइड में लाइन लगा लेते हैं, तो वहाँ पे क्यू तो 2 और 3 हो जाती है पर सर्विस क्या है हमारे पास, वन रहती है। मल्टी चैनल फैसिलिटीज, के बहुत सारे हमारे पास चैनल्स लगे हुए हैं सर्विस के लिए। ठीक है, मल्टी स्टेज चैनल फैसिलिटी, वेरियस मेडिकल टेस्ट ऑफ, कि हम एक के बाद दूसरी क्यू में जाते हैं, तो ये भी हम केस लेंगे। हमारा सिंपल केस है, सबसे पहला केस सिंगल चैनल फैसिलिटी, वन क्यू वन सर्विस स्टेशन। देखिए आपको केवल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है क्यूइंग से, एक ही मॉडल हम यहाँ पे लेंगे, बहुत सारे मॉडल हैं इसके क्यूइंग थ्योरी के, बहुत ज्यादा रिसर्च हो चुकी है अब तक क्यूइंग में, किस तरह से हम क्यूइंग को हैंडल कर सकते हैं। थर्ड आता है क्यू डिसिप्लिन। क्यू डिसिप्लिन रिफर्स टू ऑर्डर इन विच द सर्विस स्टेशन सेलेक्ट्स द नेक्स्ट कस्टमर, कि मुझे नेक्स्ट कस्टमर लेना है तो कैसे हो सकता है। तो देखिए जनरली तो हम फॉलो करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पहले आएगा उसकी सर्विस पहले होगी। ठीक है, जनरली तो यही क्यू में उस क्यूज में होता है, पर कहीं कहीं केस थोड़ा अलग होता है। दूसरा केस होता है फर्स्ट इन लास्ट कम, के फर्स्ट इन लास्ट कम मतलब जैसे आपका कोई गोडाउन है, गोडाउन में क्या हुआ, माल लगना शुरू हुआ, एक हमने यहाँ पे लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, इस तरह से लगाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला सबसे नीचे आ गया, उसके ऊपर दूसरे वाली जो हमारे आइटम्स हैं वो लगते जा रहे हैं, और जो हमारा जो लास्ट में एंट्री होगा वही सबसे पहले डिपार्च होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट इन लास्ट कम, इसका जब नंबर आएगा पहले वाले को सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये सेकंड मॉडल हुआ हमारा। लास्ट इन फर्स्ट कम, ऐसे बोल सकते हैं कि जो लास्ट में आया वो पहली बार सर्व होगा। सर्विस इन रैंडम ऑर्डर, कभी कभी सर्विस क्या हो रैंडम ऑर्डर में हो जाती है, वहां पे कोई ऐसा नहीं होता कि क्यू लगी हुई है तो हम पहले वाले को लेंगे या लास्ट वाले को लेंगे, बीच में से कहीं भी हम रैंडमली चूज कर लेते हैं। तो जनरली हम यहाँ पे जो डील करने वाले हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वही सर्विस उसको हम पहले करेंगे। चलिए अब आता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सर, तो इसमें इस पेज में क्वेश्चन बनेगा कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पर्टिकुलर पेज, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आगे आएगा, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। ठीक है,
आगे आगे जो Okay. हम लेंगे उसमें आएगा, सॉरी। चलिए चलो उस पर चलते हैं। जो ये तो हमारा हो गया। यस, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्यूइंग सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अ क्यूइंग सिस्टम इज जनरली डिस्क्राइब बाय द 5 सिंबल्स ए बी सी डी, ऐसे या इस तरह से। फर्स्ट सिंबल रिप्रेजेंट करता है अराइवल प्रोसेस, कि जो हमारे पास अराइवल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है। द सेकंड सिंबल डिस्क्राइब द सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो सर्विस टाइम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। द थर्ड सिंबल स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ सर्वर, कि हमारे पास जो चैनल हैं जिनसे हम सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं वो कितने। ठीक है। द सिंबल डी एंड ई स्टैंड फॉर द कैपेसिटी एंड क्यूइंग डिसिप्लिन। डी डिपेंड करेगा कितनी कैपेसिटी है। ये हमारी जो सर्विस है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें 20 लोग आ सकते हैं। जैसे आजकल क्या हो रहा है, आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें गाइडलाइन है कि एक शॉप में 5 से ज्यादा की एंट्री नहीं होगी। ठीक है। तो वहां पे जो सिस्टम की कैपेसिटी होगी 5 की हो गई। एंड ई स्टैंड फॉर द क्यू डिसिप्लिन, कि क्यू का डिसिप्लिन क्या है। तो इफ द सिस्टम हैज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्यू डिसिप्लिन, द क्यूइंग सिस्टम मे डिस्क्राइब एज ABCD। यानी अगर यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है। दैट फिफ्थ सिंबल मे बी ओमिटेड इन दिस केस। अगर इसके अलावा कोई भी होगा तो उसे हम डिस्क्राइब करेंगे। इफ द सिस्टम हैज infinite capacity with first come first serve discipline, the queuing system may be described as ABC infinite लगा दिया हमने, या हम इसको भी हटा देते हैं। इनफाइनाइट हटा दिया, इसको भी हटा दिया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो हमारा बचा ABC। तो यानी ये अंडरस्टूड हो गया कि अगर ABC लिखा है कि उसमें जो फोर्थ हमारा सिंबल है वो कैपेसिटी को डिनोट करता है। कैपेसिटी उसकी इनफाइनाइट है, यानी कितने भी कस्टमर आ सकते हैं। और जो उसका डिसिप्लिन है, क्यूइंग जो डिसिप्लिन है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इफ अराइवल्स फॉलो द पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन द सिंबल M इज यूज्ड। अगर हमारा जो अराइवल्स है वो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है तो हमारा हम एक ही जगह M लिख देंगे। इफ द डिपार्चर आर एक्सपोनेंशियल, अगर जो सर्विस टाइम है वो एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है तो हम वहां भी M लगा देंगे, तो हमारा मॉडल बन जाएगा। और क्योंकि हम यहाँ पे जो हम आज लेने वाले हैं वो है केवल सर्विस चैनल आपका A1 है, तो हमारा हो गया MM1 मॉडल। तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि MM मॉडल क्या डिस्क्राइब कर रहा है, या कोई एक मॉडल बना के दे देंगे उसमें पूछ लेगा कि ए क्या है, वो किसको डिनोट करता है। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है 2 मार्क्स का। ठीक है। तो MM मॉडल का मतलब क्या है कि जो हमारा अराइवल है वो पाइथन को फॉलो कर रहा है। जो सर्विस टाइम है, देखिए आप टाइम लिखेंगे तब एक्सपोनेंशियल बोलेंगे आप, अदरवाइज आप डिपार्चर अगर बोल रहे हैं, डिपार्चर जो प्रोसेस है वो आपका पाइथन होगा, पर सर्विस टाइम क्या होगा, वो एक्सपोनेंशियल होगा। और 1 किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 हमारे सर्विस सर्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने सर्वर हैं। और जो हमारा सिस्टम, देखिए आपने 3 दिए हुए हैं पर 2 अंडरस्टूड हो गए कि क्या होंगे, कि जो हमारी कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट होगी, और जो हमारा डिसिप्लिन है, क्यू डिसिप्लिन है, वो होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो हमारे पास हमारे कोर्स में केवल एक ही मॉडल है, MM1 मॉडल। तो इन दिस सिंबल ये आप, हाँ सर जी, ये सर्वर मतलब काउंटर, नंबर ऑफ सर्वर्स और नंबर ऑफ काउंटर्स। यस, number of counter represent 1 is represent the number of counter. Now the arrival follow the Poisson distribution, hence inter arrival time। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर हमारे जो कस्टमर हैं वो पाइसन प्रोसेस से आ रहे हैं, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, तो उनका इंटर अराइवल टाइम्स जो है वो एक्सपोनेंशियल को फॉलो करेगा। ठीक है। तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बार बार, वैसे तो आप इतनी बार यूज कर लोगे आपको याद हो जाएगा। लेट, अब क्या मान रहा है, लेट लैम्डा डिनोट द एवरेज अराइवल रेट, ये जो हमारे कस्टमर आ रहे हैं उनका एवरेज रेट क्या है, अराइवल रेट क्या है, अगर वो लैम्डा है तो मीन कितना हो जाएगा। अगर अराइवल रेट है तो, क्योंकि अगर हम मान रहे हैं इसको पाइसन मान रहे हैं, तो अराइवल अराइवल रेट मतलब जो कस्टमर हमारे सिस्टम में आ रहे हैं, अगर पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहे हैं तो उसका मीन कितना होता है पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो लैम्डा ही होता है। अगर हम टाइम की बात करेंगे तो टाइम हो जाएगा फिर एक्सपोनेंशियल। ठीक है। नंबर ऑफ कस्टमर तो आपके पाइसन में आ रहे हैं, पर अगर हम टाइम करें, इंटरवल टाइम की बात करें, तो वो पाइसन को फॉलो करेगा, तो वहां पे मीन कितना हो जाएगा, पाइसन का मीन, सॉरी एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल का मीन कितना होता है 1/λ। तो वो देखेंगे वो क्या कहना चाह रहा है। अगर वो इंटरवल रेट कह रहा है तो उसका मीनिंग क्या होगा,
अगर उसने मीन कहा है तो मीनिंग क्या होगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो किस, देखिए एक ही चीज को वो दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकता है, या तो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा या वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएगा। तो एक्सपोनेंशियल बताता है तो इंटर अराइवल की बात करेगा, और अगर वो पाइथन बता रहा है तो वो अराइवल्स की बात करेगा, टाइम की बात नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे। बस यही समझना है आपको, और इसमें कुछ नहीं है पूरे ब्लॉक में, पूरा यूनिट बिल्कुल है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, इफ कस्टमर अराइव एट ए रेट ऑफ 15 पर आवर, तो यानी 15 कस्टमर आपके यहाँ पे 1 घंटे में आ रहे हैं। इट मीन्स दैट ऑन एन एवरेज 1 कस्टमर अराइव इन एवरी 4 मिनट। तो मीन अराइवल टाइम, टाइम की बात कर रहे हैं, मीन अराइवल टाइम इस कितना हो जाएगा 1/50। ठीक है, तो चलिए अब सर्विस की टाइम की बात आते हैं। तो जनरली हम जो हमारा अराइवल्स है, अराइवल्स रेट को तो हम लैम्डा से इंडिकेट करते हैं, और जो सर्विस है उसको हम म्यू से इंडिकेट करेंगे। तो इफ द सर्विस टाइम ऑफ द सर्विस टाइम की बात कर रहे हैं, तो सर्विस टाइम फॉलो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो दैट म्यू इज द एवरेज सर्विस रेट, एवरेज सर्विस रेट की बात कर रहा है। तो यानी जो हमारा पैरामीटर है वो लैम्डा है, और उसका मीन कितना होगा, मीन हो जाएगा 1/म्यू, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हो तो एक्सपोनेंशियल का मीन होता है 1/म्यू। ठीक है, अभी और क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा, मैं जो डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ वो क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यस, तो आता है पहला फॉर्मूला है रो, रो इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। तो लैम्डा हमारा था अराइवल रेट, और ये था हमारा सर्विस रेट, इज कॉल्ड द ट्रैफिक इंटेंसिटी, and it is a measure of the degree of which the capacity of the service station is utilized, कि जो हमारी सर्विस कैपेसिटी है वो कितनी यूटिलाइज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द कस्टमर अराइव्स एट द रेट ऑफ 15 पर मिनट एंड सर्विस रेट इज 20 पर मिनट, तो यूटिलाइज कितना होगा, सर्विस हमारी फास्ट चल रही है, तो इसका मतलब जो यूटिलाइजेशन होगा सर्विस का वो होगा लैम्डा अपॉन म्यू, यानी 15/20, यानी 75% को यूटिलाइज कर रहा है। और इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो सर्विस फास्ट करेगा तो खाली बैठेगा फिर, तो इसका मतलब आइडियल टाइम कितना होगा उसका, 25% क्या होगा उसका आइडियल टाइम रहेगा। ठीक है, तो इट इज द ट्रैफिक इंटेंसिटी, इसका भी हम यूज करेंगे फॉर्मूले का। तो ये पहला फॉर्मूला आ रहा है आपके पास, ट्रैफिक इंटेंसिटी। तो ट्रैफिक इंटेंसिटी मतलब अराइवल रेट अपॉन सर्विस रेट, और ये क्या बताता है, ये बताता है कि हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपने सिस्टम को कितना % यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर हमारा सर्विस रेट ज्यादा है तो हम डेफिनेटली वहां पे क्या बनेगा, वहां पे आइडल टाइम बनेगा, और अगर लैम्डा ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे क्यू बनेगी। अगर अराइवल टाइम ज्यादा होगा सर्विस टाइम तो क्यू बनेगा, अगर हमारा सर्विस टाइम ज्यादा है तो वहां पे हमारा आइडल टाइम बनेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले इसके अंदर है। ये सब कुछ नहीं जरूरत है इसकी, ये सब कुछ नहीं है, डेरिवेशन किए हुए ना फार्मूले के, तो हमें तो डेरिवेशन नहीं करना है, आपको बस इसमें जो फॉर्मूले हैं उनको समझना है, और कुछ नहीं है। चलिए, इससे पहले हम थोड़ी और बात करने वाला था। चलिए, एक तो देखिए ये फार्मूला भी यूज होने वाला है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। क्या है ये, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन कस्टमर इन द सिस्टम, प्रोबेबिलिटी के हमारे एन कस्टमर इन द सिस्टम में होंगे। देखिए अब दो चीजें यहाँ पे, एक तो वर्ड आएगा क्यू और एक आएगा सिस्टम। ये देखिए ये मेरा सर्विस स्टेशन है, कैसे बताऊं, चलो एक मान लेते हैं ये सर्विस स्टेशन है मेरा, और ये मेरे कस्टमर खड़े हुए हैं, ये मेरी क्यू है, और एक मेरा बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी सर्विस चल रही है। ठीक है, तो सिस्टम का मतलब क्या है कि वो क्यू में लगा रहा, फिर उसकी सर्विस हुई, जब तक वो इस पूरे एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जाएगा तो इस पूरे एनवायरनमेंट को बोलेंगे हम सिस्टम। ठीक है, और जो ये है वो कह लेंगे क्यू। तो अगर हम बात करते हैं कि टाइम स्पेंड बाय कस्टमर इन द सिस्टम, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो कितनी देर तो वो क्यू में लगा रहा और कितनी देर उसको सर्विस में लगे, उन दोनों का सम होगा। ठीक है, क्योंकि सिस्टम की बात कर रहे हो तो इसमें हम दोनों टाइम लेंगे कि जितनी देर टाइम क्यू में भी लगा रहा और दूसरा उसकी सर्विस में टाइम लगा, तभी तो सिस्टम से बाहर निकलेगा जब उसकी सर्विस हो जाएगी। तो अगर हमें ये देखना हो कि हमारे एन कस्टमर हमारे सिस्टम में हैं, तो सिस्टम मतलब जो लाइन में भी लगे हुए हैं और जिसकी सर्विस भी चल रही है, उनको मिला के उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस रो एंड रो की पावर एन। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी कस्टमर हमारा
क्या हुआ, सिस्टम में नहीं है, यानी कोई भी रो, कोई भी क्यू नहीं है और ना ही कोई बंदा, यानी कुल मिला के मैं गया तो मेरा फर्स्ट नंबर आ जाएगा। उसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी कस्टमर मेरे सिस्टम में नहीं है। अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो वो जाएगी 1 माइनस रो की पावर n, तो n मतलब 0, कोई भी कस्टमर उसमें नहीं है तो उसकी हो जाएगी 1 माइनस 0। अगर एक कस्टमर हमारा सिस्टम में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी P1 इज इक्वल टू 1 माइनस रो की पावर 1। टू कस्टमर है तो 1 माइनस रो की पावर 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना। देखिए फार्मूले याद रखने के साथ साथ इनका यूज कैसे करना है ये सीखना है आपने यहाँ पे, कि उनका यूज भी कैसे करना है। चलिए तो बात है आगे। देखिए इसमें कुल मिला के 4 या 5 फार्मूले हैं, वैसे तो फार्मूला बुकलेट में सभी मेंशन है तो आप देख लीजिएगा। सेकंड है द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, ये तो प्रोबेबिलिटी थी कि इतने कस्टमर सिस्टम में होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे है कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम इज इक्वल टू LS। देखिए जब हम दो चीजें यहाँ पे मैंने कहा, एक तो हम ये निकालेंगे कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, और दूसरा निकाल रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम। तो सिस्टम निकालेंगे तो उसको LS से लिखेंगे और क्यू निकालेंगे तो LQ से लिखेंगे। तो LS डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि वो सर्विस वाले जिनकी सर्विस चल रही है वो भी इसमें इंक्लूड, तो उसका फॉर्मूला है LS इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस रो। तो अगर रो की वैल्यू पुट अप करें तो रो की वैल्यू थी लैम्डा अपॉन म्यू, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा अपॉन म्यू, और अगर हम इनका एलशियम ले तो हो जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू, ऊपर हो गया और नीचे हो गया म्यू माइनस लैम्डा, और म्यू हो गया नीचे, म्यू से म्यू कैंसिल, तो कुल मिला के फार्मूला बन गया लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, अब चलते हैं जी सेकंड फॉर्मूले पे। सेकंड फॉर्मूला इसमें गलत है तो वो आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं नोट डाउन करा देता हूँ आपको। यस पहले से इरेज कर लें, यस तो वो नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ये है एवरेज लेंथ, एवरेज क्यू लेंथ, यानी क्यू में कितने लोग थे तो LQ से इंडिकेट कर रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन द क्यू, या क्यू लेंथ, बात एक ही है। तो दिस इज LS माइनस ट्रैफिक इंटेंसिटी। तो LS की वैल्यू थी आपकी लैम या तो आप रो से निकाल सकते हैं या लैम्डा से, तो लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा माइनस ट्रैफिक इंटेंसिटी थी लैम्डा अपॉन म्यू। अब इनका एलशियम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा म्यू माइनस लैम्डा इंटू म्यू, लैम्डा चाहे तो कॉमन रख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हुआ म्यू, और यहाँ पे हुआ म्यू माइनस माइनस प्लस लैम्डा, और म्यू से म्यू कैंसिल, तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, तो आप ये फार्मूला इसके लिए कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा इसकी। ठीक, तो ये होगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन म्यू, म्यू माइनस लैम्डा।